Good morning viewers and good morning dear students. Well, I am not getting proper response from all of you, and usually I have got many students like Mayank Bharti, Krish Ranjan. They used to take too much interest in it. Some of the students, they are taking interest in it, but from them I am not getting any response. Still I am persistent with my work. Let's see. So yesterday, as I promised, we will go through usage of continuous tenses, the rules and all we did yesterday, and today we will see usage of continuous tenses. So I have bifurcated three in different parts. You see, the first one is present continuous. Where do we use present continuous? We use present continuous for an action going on at the time of speaking. Whatever is going on at the time of speaking. So what is happening right now, you just see what is happening. I am speaking means I am teaching you. So this is what this is present continuous, showing the thing that is happening at the time of speaking. Then you see they are playing cricket. So what are they doing right now? They are playing cricket. Number one. For a temporary solution which may not actually happening at the time of speaking, you see if you are traveling in a train and you are asked by your friend, what are you doing? So what are you doing means right now what are you doing? No, means suppose I am asking you, the one who is standing before me, and I am asking you, what is your sister doing? So does he know what is she doing right now? No, but she will say what that I want to know what is she pursuing, what is she doing, what is she studying right now. So for that she is pursuing her B.Ed, means right now at the time of speaking she is doing or not, but that is the temporary solution I am getting, and I want to know that from that particular person. Action planned in near future means the action that will happen in near future and it has already been planned. वो योजना जो हम बना चुके हैं और वो भविष्य में हम करने वाले हैं. ठीक है, जैसे I am going to meet him tonight. Tonight you see this is future time, but this is present continuous tense. I am going to, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ. ये ठीक है. कब? Tonight means you have made the plan. You have made the plan that I am going to meet him or her tonight. For a repeated action with adverb like always, continually, constantly, very, etc. You see the example, he is always helping the poor. इसको हम क्या, he helps the poor. That is okay, that is all correct. But here we are using the word always, the adverb always. इसके साथ हम present continuous भी use कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए, he is always helping the poor. She is constantly talking to her friend. वो निरंतर अपने दोस्त से बात करते जा रही है. ठीक है, तो ये आपको रिपीटेड एक्शन बता रहा है यूजिंग द एडवर्ब, कॉन्टीन्यूअली, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, ये सब है. तो ये हुआ आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. अब आप आ जाइए पास्ट कॉन्टीन्यूअस में. टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन सम टाइम इन द पास्ट, जो चल रहा था पहले और उसको मैं अभी बता रहा हूँ कि वो रहा था, रही थी, रहे थे. उसमें शी वॉज वीपिंग बिटरली, वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी. कब? जो इंसिडेंट, द इंसिडेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट और द इवेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एट दैट टाइम व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज वीपिंग बिटरली. ही वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक, वो क्या कर रहा था जब मैं बता रहा हूँ जिस समय के बारे में, तो ही वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक. अगेन द सेकेंड पॉइंट विद एन एडवर्ब ऑल. देखिए, इट वॉज रेनिंग ऑल नाइट, ही वॉज टॉकिंग ऑल डे. ठीक है. He was still reading when I woke up. वो पढ़ ही रहा था. कब? जब मैं उठा, मीन्स पढ़ता ही रहा. तो देखिए यूज़ हुआ, स्टिल का भी यूज़ हो गया है. Here you have got still, here all. अब देखो फॉर persistent habit, निरंतर जो आदत होती है इन द पास्ट विथ ऑलवेज और कंटिन्यूअली. इसमें भी आप ऑलवेज और कंटिन्यूअली के साथ आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ प्रेजेंट में आप किए थे, यहाँ भी कर सकते हैं. द बॉस वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग. बॉस क्या करते थे? हमेशा बड़बड़ाते रहते थे, बड़बड़ाते रहते थे. ठीक है. यूज्ड इन मेकिंग पोलाइट इंक्वायरीज. ठीक है, अगर आप विनम्रता से कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये. जैसे कैसे, देखिए, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ ही कुड कम टू सी मी. ठीक है, आई वॉज वॉन्डरिंग, तो ये आप इंक्वायरी कर रहे हो, पूछताछ. तो लेकिन वो पोलाइट होना चाहिए. इट शुड बी पोलाइट, विनम्र, विनम्रता पूर्वक. ओके. द थर्ड वन इज़ फ्यूचर. द फ्यूचर में आप देखो, टू रिप्रेजेंट एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा, हो रहा होगा. दैट इज़ व्हाट वी मीन टू से, कि हो रहा होगा. ठीक है, वो जा रहा होगा,
ये आप अंदाज़ा लगा दिए हैं, इट इज़ एस्टिमेशन और फ्यूचर इज़ ऑलवेज एस्टिमेशन। वी ऑलवेज कीप इन माइंड कि हाँ वी आर गोइंग टू डू दिस, वी विल डू डैट, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा गॉड नोज बेटर, पर हम एस्टिमेट करते हैं। इट इज़ एस्टिमेशन। यू सी द गेस्ट विल बी अराइविंग एनी टाइम फ्रॉम नाउ, मेहमान कभी भी आ सकते हैं, आ रहे होंगे। इट मीन्स फॉर फ्यूचर इवेंट दैट आर प्लान्ड, वो फ्यूचर की घटना जो आप प्लान कर चुके हो, जैसे गोइंग टू याद है, उसके जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो। देखो ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट मंथ, वो हमसे कब मिल रहा होगा? नेक्स्ट मंथ। आई शैल बी सीइंग हिम टू नाइट, मैं उससे कब मिल रहा हूँगा? आज रात। इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म टू आस्क ए पोलाइट क्वेश्चन, देखिए यहाँ भी पोलाइट इंक्वायरी थी पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और यहाँ पे पोलाइट क्या है? क्वेश्चन है। जैसे विल यू बी डूइंग इट इन आवर एब्सेंस, ये यूजुअली होता है जब पेरेंट्स बाहर जाते हैं, माता पिता, तो बच्चे से वो प्रॉमिस करवाते हैं और बोलते हैं बहुत पोलाइटली, वो उससे इंटेरोगेट करते हैं कि विल यू बी डूइंग इट इन आवर एब्सेंस, क्या आप ऐसा करोगे? सो फॉर ऑल दिस व्हाट डू वी यूज? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ओके, बट let me tell you about present continuous. I would like to tell you something more about this present continuous, कि how to use. Okay, this we have seen कि where we can use it, and you know we usually use it with action verb. Action verb, we use it with action verb. तो आप बोलोगे कि action verb और non action verb क्या है? Action verb and non-action verb. Non-action verbs. Action verbs क्या होता है? जो continuous में दिखाता है, जैसे I am teaching you, तो ये टीचिंग क्या हुआ? ये काम चल रहा है, ये एक्शन वर्ब में आ गया, ठीक है। लेकिन नॉन एक्शन वर्ब में क्या होगा? तो नॉन एक्शन वर्ब जो है, नॉन एक्शन वर्ब क्या दिखाता है? इट शोज द स्टेट, इट डजंट शो द एक्शन, वो अवस्था को दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग, इट शोज द स्टेट ऑफ बीइंग। तो नॉन एक्शन वर्ब आप देख लो, कुछ वर्ब हैं जैसे नॉन एक्शन वर्ब जिसे हम बिल्कुल भी किस में यूज़ नहीं करते हैं, हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं करते हैं, ऑल्दो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। लेकिन आप देखो जब आप वर्ब्स ऑफ सेंसेस में जाते हो, वर्ब्स ऑफ सेंसेस देखिए इसमें वर्ब्स ऑफ सेंसेस, तो इसमें होता है हियर, सी, टेस्ट, क्या होता है? हियर, सी, टेस्ट, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो हाँ हियर, अब ये देखो आई एम हियरिंग यू, नहीं आई हियर यू, आई कैन सी इट, आई विल टेस्ट इट, इस तरह से होता है ना। तो इसमें क्या है, ये जो हियर, सी, टेस्ट, स्मेल, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, दीज आर कॉल्ड वर्ब ऑफ, दीज आर नॉन एक्शन वर्ब्स। ओके, और इसे हम क्या करते हैं? यूजुअली वी अवॉइड यूजिंग इट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। स्मेल, जैसे देखो रोज स्मेल्स स्वीट, इट इज़ ए स्टेट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि रोज इज स्मेलिंग स्वीट, तो दिस वन इज इनकरेक्ट. Rose smells sweet is okay, but rose is smelling sweet is incorrect. Why? Because this is non-action verb. Okay, तो this one is correct. Okay, तो ये हुआ verb of senses. ये क्या हुआ? Verb of senses. अब देखो आप verb of possession. Verbs of possession. वर्ब्स ऑफ पोजेशन मीन्स ये स्वामित्व को दिखा रहा है. इट इज शोइंग स्वामित्व. तो ये भी है नॉन एक्शन में. जैसे देखो इसमें क्या है? ओन, बिलोंग, पोजेस, इस तरह के वर्ड जो आते हैं तो यू कैन नॉट यूज इट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जैसे आई ओन दिस हाउस, ठीक है. आई एम ओनिंग दिस हाउस इज इनकरेक्ट. This book is belonging to me is incorrect. This book belongs to me because it shows the state. Possess,
ठीक है, ये पोजेसन हुआ, पोजेस में आई पोजेस ए ब्यूटीफुल गार्डन। ओके, ये हुआ। तो आप क्या क्या देखें इसमें, वर्ब्स ऑफ सेंसेस, वर्ब्स ऑफ पोजेशन, इसमें क्या होता है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ नहीं करते हैं। ये दो हुआ, और भी है। वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेट और एक्शन, जो आपके मस्तिष्क से, आपके सोच से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कुछ कुछ वर्ड हैं, जैसे आप जानते हो, आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई डाउट, आई ट्रस्ट, I am trusting, believe, think, remember। इस तरह के जो वर्ड हैं जो आपके मेंटल स्टेट को दर्शाते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें देखिए कि हम व्हाट डू वी यूज़, वी यूजुअली यूज़ व्हाट, we use present indefinite, not present continuous। I know that you are a laborious boy, I understand, I am understanding, no। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड हैं जो भी, जो आपके मेंटल स्टेट को दर्शाता है, तो उसके साथ व्हाट डू वी यूज़, हम क्या यूज़ करते हैं, उनके साथ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, नॉट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एग्री, डिसएग्री, सपोज, ये सब भी आ जाते हैं कि जैसे एग्री, आई एम एग्रीइंग, नहीं, आई एग्री विद यू। डिसएग्री, डिसएग्री, सपोज, आई सपोज यू विल डू इट, आई एम नॉट सपोजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज। तो वर्ब ऑफ मेंटल स्टेट और एक्शन भी आप देख लिए, देखिए यहाँ पे नो, अंडरस्टैंड, ये सब है। अब है वर्ब ऑफ फीलिंग और इमोशंस। तो फीलिंग्स और इमोशंस, फीलिंग्स जानते हो, जो हम सोचते हैं, आई फील, आई फील, I like, I dislike, or I hate। Feel, like, hate, expect, hope, desire। तो इसी तरह के जो वर्ड हैं, इसी तरह के जो वर्ड हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा करेंगे, ये एक्शन का, आई एम वांटिंग दिस, या आई वांट टू, आई एम वांटिंग टू टीच यू, और आई वांट टू टीच यू। तो आई वांट टू टीच यू, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, एंड नॉन एक्शन वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड विद द एक्शन थिंग दैट इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ओके, लेकिन इसके बाद भी क्या है कि कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं, कि जैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं दोनों में, इट कैन बी यूज्ड बोथ एज एक्शन एज वेल एज नॉन एक्शन। जैसे टेस्ट हो गया, एक वर्ड आप देख लो कि टेस्ट, तो टेस्ट को उसके यूज़ पे आपको डिपेंड करता है, कैसे क्या करोगे, टेस्ट, तो क्या करोगे आप, क्विनिन टेस्ट बिटर। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इसी को अगर आप चाहो तो आप एक्शन में भी बना सकते हो टेस्ट, जैसे देखो ही इज़, लेकिन क्विनिन इज टेस्टिंग बिटर नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द स्टेट, एंड यहाँ पे क्या होगा, ही इज टेस्टिंग द आइसक्रीम, ही इज टेस्टिंग द आइसक्रीम। ये है, तो ये था आपका
continuous tense. Okay, आप इसे अच्छे से देखो, go through it well, and as you know that nothing is interesting if you are not interested, and everything is interesting if you are interested. So try to create interest in yourself, then you will like it, you will apprehend it, you will comprehend it. And thank you. See you tomorrow.